سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ ملک کی ترقی سے نہیں ہٹا سکتے. ملک کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی کوششیں ناکام ہوں گی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں. آرمی چیف کا کہنا ہے خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا. آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں، توجہ ملک کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رکھیں. نواز شریف سے پارٹی قیادت دوبارہ سنبھالنے کی درخواست کی ہے. صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، نواز شریف کی چین سے واپسی پر تجاویز پیش کی جائیں گی. ہم وہی لیڈرشپ فراہم کریں گے جس کی عوام توقع رکھتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ پارٹی بیانیہ وہی رہے گا جس کی منظوری میاں محمد نواز شریف دیں گے. پارٹی نے شہباز شریف اور مریم نواز کی کارکردگی پر اظہار اعتماد کیا ہے. پارٹی کا آپریشنل عہدہ صدر کا ہی رہے گا. پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں، اور ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ کے مقبولیت اور اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کرے گی. اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے، الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، اس کے اوپر بڑی ہی مؤثر، وائز اور قابل عمل جو ہے وہ تجاویز دی ہیں، جنہیں مرتب کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ قیادت کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائیں گی جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب چائنا کے وزٹ سے جو ہے وہ واپس آتے ہیں. مسلم لیگ نون پنجاب کے اجلاس میں میاں محمد نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کے حق میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی. قرارداد میں کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کو 2017 میں ایک سازش کے تحت نااہل کیا گیا. میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سے جبری طور پر محروم کیا گیا. آج جبکہ سازشی آرڈرز اور جعلی سزائیں اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں، مسلم لیگ نون اپنے قائد میاں محمد نواز شریف سے استدعا کرتی ہے وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں تاکہ پارٹی ان کی ولولہ انگیز قیادت میں عوامی مقبولیت کی نئی جہتیں طے کر سکے. ضمنی انتخابات میں پارٹی کی بھرپور کامیابی پر پنجاب کی تنظیم بالخصوص پارٹی قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی تھی. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہم آج بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ بھی تو ہاتھ ملائیں. اپوزیشن محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں. مزید کہا، آج پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہیں. شاہ محمود کو ہتکڑی میں دیکھ کر دکھ ہوا. میں بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں، ان کی فالوئنگ ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں علی کی طرف. علی اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں ہاتھ ملاؤں گا نا. اگر وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے رکھے گا یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، میں ہاتھ نہیں ملا سکوں گا. آپ اگر احتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام اچکزئی ہے، محمود خان اچکزئی ہے، جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کا ایک رویہ رہا ہے، ان کو آپ صدر کے لیے نامزد کر سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان سے، جن کا نام بھی آپ بھول گئے تھے کہ نام کیا ہے ان کا، ان کے ساتھ آپ احتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. تو پاکستان کی تعمیر کے لیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ چیز، یہ بیڑیاں ہم نے خود اپنے پاؤں میں باندھی ہوئی، یہ ہتکڑیاں خود لگائی ہوئی. جب ہتکڑی لگی ہمارے دوست کو تو میں نے کہا کہ یہ غلط ہے.
मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के दुख होता है। वज़ीर आज़म ने मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का ऐलान किया है। मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करना पड़ेंगे, सख्त फैसलों पर पहरा भी देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं ला सके। वज़ीर आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर 72 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इंक्वायरी कमेटी बनाई। कहा कि मुआहदे में कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं डाली गई। अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का मुआहदा नहीं देखा। हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है, फिर हमारी जो बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ। बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं। बिजली हम सस्ती कर सकते हैं। जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसकी जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। अरबों खरबों जहाँ पर कौम की आमदन जहाँ पर आ सकती थी और जिसके लिए एक एहतमाम किया गया उसको मुकम्मल तौर पर एक कलूजन के ज़रिए उसको बर्बाद कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि हमें बड़े इस मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ट्रैक एंड ट्रेस का जो मामला है उसकी मैंने अब इंक्वायरी कमेटी मैंने बना दी है और 72 घंटे में उसकी रिपोर्ट मैंने मांगी। उसके ऊपर वी विल टेक स्टर्न एक्शन। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी मोहसिन स्पीड। वफाकी वजीर दाखिला ने 3 महीने में इस्लामाबाद के थाने बदलने का फैसला कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, हमारे साथ वही ऑफिसर चलेगा जो हमारी स्पीड पकड़ेगा। कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदों को 3 माह की मोहलत दे दी है। वजीर दाखिला ने नेक्टा को मुकम्मल तौर पर फ़आल करने का ऐलान किया। मारगला हाइकिंग ट्रेल्स की सिक्योरिटी भी बढ़ाने का फैसला किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा किया। IG इस्लामाबाद ने उनका इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर 24/7 खुलेगा। इस्लामाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये IG ना सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं और इन्होंने अपना लाहौर में भी बहुत मेहनत से काम किया। यहाँ का खिदमत मरकज़ अभी सिर्फ ऊपर पब्लिक के लिए खुला हुआ था। हम इमीडिएटली इसको नीचे भी पब्लिक के लिए खोल देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और अकोमोडेट हो सकें। दूसरा, इमीडिएटली मैंने IG साहब से बात की है, हम इसको 24 घंटे का खिदमत मरकज़ सेंटर बनाने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का उन वाहिद मरकज़ में से है जो 28 किस्म की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। मारगला का ट्रैक जो था वो काफ़ी इंसिडेंट उसमें आ रहे थे सामने, उसके लिए अलहदा पेट्रोलिंग पुलिस हम तकरीबन हमने शुरू कर दी है, लेकिन उसका बाकायदा और लंबे चौड़े लेवल पे हम अगले थोड़े दिन में शुरू कर देंगे मैसिव स्केल में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्राइम को नीचे लाना है। अगर लाहौर में 30% क्राइम नीचे आ सकता है ओवरऑल पंजाब में, तो इस्लामाबाद में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक को 3-4 चीज़ों से करता है, क्राइम नीचे आ जाए, उनका केस 100% रजिस्टर हो। इस चीज़ में मेरी 1% भी टॉलरेंस नहीं होगी कि किसी की FIR रजिस्टर्ड ना हो। सिंध हुकूमत ने टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा सख्त करने की तैयारी कर ली है। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला कर लिया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक इजलास में ये अहम फैसले किए गए। शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स चोरों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरों के अकाउंट भी मुंजमद कराएंगे। मनशियात फरोशों के हवाले से शर्जील मेमन का कहना है, मनशियात फरोश मुल्क व कौम के दुश्मन हैं, उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई 0 टॉलरेंस की बुनियाद पर होंगी। तो इजलास का अहवाल आपको बता रहे हैं। सिंध हुकूमत की टैक्स चोरों मनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा सख्त करने की तैयारी। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ये अहम फैसले हुए हैं।
पंजाब में गंदम के काश्तकारों की परेशानी कम न हो सकी। हुकूमत ने खरीदारी शुरू नहीं की। किसान औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर हैं। आड़ती और व्यापारी दोनों हाथों से किसान को लूट रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट। गंदम ढेरों ढेर, सरकारी निरखों पर खरीदने के लिए तैयार कोई नहीं। हुकूमत ने खरीदारी मराकज तो कायम कर दिए मगर गंदम खरीदना शुरू नहीं किया। व्यापारियों और आड़तियों ने गरीब किसान को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर गंदम की खरीदारी ताखीर का शिकार है। काश्तकार गल्ला मंडी में गंदम इंतहाई कम निरखों पर बेचने पर मजबूर हैं। आड़ती सरकारी निरखों पर गंदम नहीं खरीद रहे। गंदम की फी मन कीमत 2800 से लेकर 3300 रुपए लगाई जा रही है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਇਤਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। 2,50,000 ਠੇਕਾ ਹੈ। 16-17,000 ਨੂੰ ਖਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਲਵੀਏ ਤੇ 500 ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਜੀ। 200-400 ਡਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾ ਛੱਡੋ। किसानों ने हुकूमत से गंदम की खरीदारी फौरी शुरू करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने अगर मसाइल हल न किए तो आइंदा साल गंदम काश्त करना मुश्किल फैसला होगा। आम किसान जो अनपढ़ भी है, जिसको ये डिजिटल यूज़ करना भी नहीं आता, जिन्होंने अप्लाई भी नहीं कर सके, उनके लिए भी आसानी पैदा की जाए और लिमिट को भी बढ़ाया जाए और बारदाना जल्द अज जल्द जरा की जाए, क्योंकि बारिशों की वजह से गंदम ख़राब हो रही है। काश्तकारों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर आने का ऐलान कर रखा है। किसान आज लाहौर प्रेस क्लब और पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज कर। लाहौर के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें जो खुशगवार हो गया है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। मॉल रोड, गुलबर्ग टाउनशिप, जेल रोड और गड़ी शाहू में अब्र करम, कोट लखपत, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और ग्रीन टाउन में भी बूंदाबांदी हुई है। बारिश के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई है और मौसम भी खुशगवार हो गया है। नेशनल पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अतराफ में भी बारिश हुई। बारिश के बायस न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया है। तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मॉल रोड, गुलबर्ग टाउनशिप, जेल रोड, गड़ी शाहू में अब्र करम बरसा। कोट लखपत, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, ग्रीन टाउन में भी बूंदाबांदी हुई। गजा के नसर मेडिकल कैंप और अल-शिफा से इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त से मुतल्लिक नया इंकशाफ सामने आया है। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक नसर मेडिकल कैंप से मिलने वाली लाशों में से 20 फ़लस्तीनियों को जिंदा दफन किया गया। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस का कहना है कि खान यूनिस के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 अलग अलग इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई। लाशों में से कम 10 लोगों के हाथ बंधे हुए थे। शुहदा के जस्द खाकी से मेडिकल ट्यूब्स भी जुड़ी थीं, जिससे जाहिर होता है कि इन्हें इसराइली फ़ौज ने जिंदा दफन किया। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक लाशों की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत है। अल नसर मेडिकल कैंप से मिलने वाली 392 लाशों में से सिर्फ 65 लाशों की ही शनाख्त हो सकी है। गजा से मिलने वाली 6 इज्तिमाई क़बूर से तकरीबन 450 लाशें बरामद हो चुकी हैं। उधर 24 घंटे के दौरान इसराइली फोर्सेस ने गजा की पट्टी पर 5 हमले किए। इसराइली हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद और 64 ज़ख्मी हो गए। इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 34,305 फ़लस्तीनी शहीद और 77,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में इसराइल की मुसल्लत करदा जंग के खिलाफ अमरीकी यूनिवर्सिटी में जारी एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। पुलिस और तलबा मुजाहिरीन में झड़पें जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कॉलेज मुंतज़मीन के हुक्म पर पुलिस ने अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में तलबा जो मुजाहिरीन हैं उन पर टेज़र और आंसू गैस की शेलिंग कर दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाज के बायस तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तलबा को एहतजाज ख़त्म करने के लिए आज की डेडलाइन दे रखी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की मुतादिद यूनिवर्सिटी से अब तक 530 तलबा को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर पेरिस की एक यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक तलबा गजा में इसराइली जहरियत बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। फ्रांसीसी पुलिस ने मुजाहिरा करने वालों को मुंतशिर कर दिया।